Wabarakatuh. A very warm welcome to everyone joining us today from across different places for this special occasion. I'm Dr. Reema Aslam, and it's my privilege to moderate today's convocation ceremony for the one-year diploma in Hospital Prevention and Control Page 8, jointly organized by the Indus University of Health Sciences and the Indus Hospital and Health Network. As a faculty member of this esteemed program, I have had the pleasure of teaching research and hospital epidemiology, the cornerstones of effective infection prevention. As one poet said, beautifully said, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. So today we celebrate not just an academic milestone, but the resilience, commitment, and service of the healthcare professionals who have dedicated themselves to making hospitals safer and healthier spaces for all. Without further delay, let us begin with the recitation of the Holy Quran. I would now like to invite Mr. Ubaidur Rahman for Tilawat-e Quran. Mr. Obaid, it's over to you. Um, Farhan, are you there? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Jazakallah khair for the soulful recitation. Dear graduates, your one-year journey in this course was more than academics. It was about developing a mindset of vigilance, responsibility, and compassion. You are now guardians of the patient's safety. As Allama Iqbal said, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. To reflect on the journey of the HIPC, now I would like to request Ms. Arfa Khatoon to give her some reflects and insightful thoughts about this diploma and the whole journey. And she is, you all know it very well that she is the founder and she is a very well teacher
as well, and she's taught you a lots of things in this diploma. So I would like to request Ms. Arfa Khatun, the Professor of Indus University and Health Sciences and Senior Manager of Infection Control Department of Shifa International Hospital. Ms. Arfa, it's over to you. Walaikum Assalam. Thank you, Rima. अस्सलाम वालेकुम। एज यूजुअल मैं पूछूं सबसे कि सब लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आज बहुत खुश भी होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब आप लोगों के सर्टिफिकेट्स आएँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि रीमा ने बताया कि हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया था और ये पाकिस्तान का पहला कोर्स है, डिप्लोमा प्रोग्राम जो इनिशिएट हुआ इंडस हॉस्पिटल से। और इसमें रीमा मैं भी ये भी बताना चाहूँगी कि इसमें हमारे पास जो बहुत मोटिवेशनल एक जो हमारे साथ एक रही है सपोर्ट, वो डॉक्टर अल्ताफ़ की है जो आज हमारे साथ हैं। और हम हमेशा ही इस चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और उन लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जो इस जर्नी में हमारे साथ थे। तो ये हमने 2017 में पहला बैच स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों की इन्फेक्शन कंट्रोल की जो टीम थी इसको सपोर्ट किया था इंडस हॉस्पिटल में डॉक्टर शामुल अशरफ ने, और मैं उनके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इस सारे प्रोग्राम में हमारे साथ थे। तो ये हमारा पहला बैच है 2017 का, जब हम इनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे थे फॉर द एडमिशन। तो ये पहली पिक्चर है 2017 की। तो थोड़ा सा पिक्टोरियल एक जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था इन 2017, तो इनिशियली हमारे पास 24 स्टूडेंट्स थे जो कि मेरे ख्याल 2018-20 के बैच में 44, और इस तरह से ये इंक्रीज होते चले गए 50, 99 एंड 147 और 169 हमारा सबसे बड़ा बैच था। लेकिन उसके बाद फिर जब हम हेल्थ यूनिवर्सिटी के साथ हमारा मर्जर हो गया, इंडस हॉस्पिटल का जो भी प्रोग्राम थे वो सारे इंडस यूनिवर्सिटी के साथ चले गए। तो वहाँ पे एक चेक लगा दिया कि हमें इस अपने जो स्टूडेंट्स है उसको 150 तक रखना है। तो मैं इस के साथ ही ये बताऊं कि जब हम लोग अनाउंस करते हैं अपने कोर्स को, और हमारे पास जो लिमिट होती हैं वो डिफाइन होती हैं पहले से, लेकिन माशाल्लाह जो स्टूडेंट्स की जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और हमें उनको सेलेक्ट करना हमारे लिए ठीक ठाक एक टफ टाइम होता है जब हम सिलेक्शन करते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद भी हम लोगों के पास ऐसी सिचुएशन होती है कि हम किस तरह से लोगों को फिल्टर करें और अपने पास सिर्फ जो हमारे पास नंबर्स असाइन है वो हम ले सकें। तो ये हमारी एक टफ टाइम के बाद सिलेक्शन होती है और ये हमारे ग्रुप्स आते हैं हमारे साथ। ये एक पेक्टोरियल जर्नी है। डीन है डॉक्टर जफ़र, हमारे पास डॉक्टर जफ़र जैदी जो कि इंडस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के डीन हैं। एक ग्रुप के साथ हमारी पिक्चर है और ये हमारी मेमोरीज भी हैं। तो इसी तरह से ये बैच 2 है जो कि मनावा हॉस्पिटल की तस्वीर है लाहौर की, क्योंकि जो भी आप लोगों को सबको पता है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए इंडस हॉस्पिटल के जो डिफरेंट सेंटर्स हैं कराची में, लाहौर में, मुजफ्फरगढ़ में, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा इस साल, पिछले साल से हमने स्टार्ट किया है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल को भी इसके अंदर ऐड किया है। तो हमारे 2 बैचेस शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर भी आकर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ आए हैं। तो जनाब ये हमारा बैच 4 है और ये जुबली हॉस्पिटल लाहौर इंडस हॉस्पिटल की पिक्चर है। इसी तरह से बैच 6 है, ये मुजफ्फरगढ़ की एक पिक्चर है। और ये हमारी अभी जो लास्ट 7th बैच है ये कराची इंडस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की एक पिक्चर है। तो जनाब ये हमारा जर्नी है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम लोग इसमें बेहतर से बेहतर करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और इसके अंदर हम सिर्फ उन लोगों को ही ट्रेन ना करें जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की टीम में आना चाहते हैं, बल्कि तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी ये यूज़फुल है ये 1 ईयर डिप्लोमा,
आपके इससे नॉलेज और जो भी स्किल्स आती हैं वो आपकी स्ट्रेंथन होती हैं और आप पेशेंट सेफ्टी के लिए एक बेहतरीन काम कर सकते हैं, जो कि एक हेल्थ केयर वर्कर की जिम्मेदारी है। तो ये है हमारी जर्नी। थैंक यू वेरी मच रीमा। मेरा सेशंस कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Sarfa, and it's wonderful that you explain about the journey and the pictures regarding our diploma. Thank you once again. So now infection prevention is not limited to one hospital or one country. It's a global mission, and every trained professional is a vital part of this network. As Allama Iqbal reminds us, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, जो रोशन है वही रोशनी बांटते हैं। So it's my pleasure to introduce Dr. Mumtaz, a renowned medical professional with 24 years of experience in clinical and public health. As a national focal person for infection prevention and control at the National Institute of Health Islamabad, to share his thoughts on global perspectives of infection prevention and control, I would like to invite our chief guest, Dr. Mumtaz. Please, it's over to you. आई एम सॉरी रीमा, मेरा ख्याल डॉक्टर मुमताज़ इस वक्त किसी जगह पे स्टक हुए हैं। मेरे साथ उनका राब्ता है, वो शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप डॉक्टर Okay. अल्ताफ़ को कॉल कर लें। जब मीनवाइल अगर वो हमें ज्वाइन करते हैं तो हम उनको कॉल ले लेते हैं। Okay, sure. Okay. Thank you. So now I would like to introduce regarding our Dr. Altaf Ahmad to shed light on the national perspective. I'm honored to invite Dr. Altaf Ahmad, a distinguished expert in infection prevention and control and director of IPC in PKLI. Having pioneered IPC in this hospital, Dr. Altaf brings extensive experience from esteemed institutions like Aga Khan University and Hospital Ziauddin and Indus Hospital as well. His contribution to the field of infection prevention and control are significant, including the development of the guidelines in calibration with the National Institute of Health. Let's welcome Dr. Altaf Ahmad. Please, it's over to you. Thank you, Dr. Rima. What a fantastic event today is, because it's such an important कि आज graduates निकल रहे हैं IPC के. That was the dream long time ago, जब मैं इंडस हॉस्पिटल से अपनी जर्नी शुरू की थी, और उससे पहले IPC शुरू किया था, और आरफा खातून मेरी पहली स्टूडेंट है, और आप देख सकते हैं कि वो एक खुद लीडर बन चुकी हैं. कहते हैं ना कि अपने ट्रेनीज को इस तरह ट्रेन करो कि ये ना पता चले कि लीडर कौन है. सो एवरीवन इज अ लीडर. तो आप देख लें, और भी लोग हैं जिन्होंने एक्सेल किया, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, और समहाउ कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग भी ली है उन्होंने. तो एक फख्र फील होता है. मुझे पता है कि आरफा इस वक्त क्या फील कर रही होगी कि उसने इस चीज़ को संभाला मेरे जाने के बाद, और बहुत अच्छा संभाला और बहुत एक्सेल किया. और इंडस हॉस्पिटल ने सपोर्ट किया, डॉक्टर बारी, डॉक्टर जैदी. लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट आप लोगों ने पढ़ी होगी. तो आज जो बच्चे निकले हैं, सो इनके लिए यही है कि आईपीसी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है इस मुल्क की. बिकॉज गुड क्वालिटी हेल्थ वर्क की जब आप बात करते हैं, तो विदाउट आईपीसी देयर इज नथिंग. मैं एक जेसीआई एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ इस वक्त, पीकेएलआई में. जेसीआई की जब टीम आई थी, तो वो सबसे ज़्यादा उनके सवालात आईपीसी से मुताल्लिक थे कि आपने पेशेंट के लिए क्या किया है, आपने विजिटर्स के लिए, आपने हेल्थ केयर वर्कर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, क्लीननेस के लिए, हाउसकीपिंग के लिए, फूड सर्विसेज के लिए, वाटर क्वालिटी के लिए, एयर क्वालिटी के लिए, आइसोलेशन के लिए, आईसीयूज के लिए, डायलिसिस के लिए, यू कैन काउंट. हर जगह आईपीसी है. और आप लोग ने अगर सही तरह से पढ़ा है तो प्लीज़ रिमेंबर, कभी ना कभी मेरे पास भी लोग आते हैं इंटरव्यू देने, तो उस वक्त हमें शर्मिंदगी ना हो कि आप डिप्लोमा करके आ रहे हो और आपको कुछ नहीं पता. सो कीप प्रैक्टिसिंग. जो लोग आज सर्टिफिकेट लेके आइस बन जाएंगे, मींस इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट. सो एक्सपर्ट कहने से पहले सोच लें कि आप जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं कि नहीं, जिस इंस्टीट्यूट से आए हैं. फाइटर बनो आरफा की तरह, ताकि ये हो सके. ये तो नहीं कि हम किसी जन्नत में रहते थे और हमने किसी पाकिस्तानी हॉस्पिटल में काम नहीं किया है.
उसी हॉस्पिटल में किया है। आरफा ने भी किया है और दूसरे सीनियर्स लोगों ने किया है, मैंने किया है। और हमने जिन जिन इंस्टीट्यूट में किया है वहाँ काफ़ी हद तक आईपीसी को लेकर आ गए। लोग बेचारे मायूस हो जाते हैं पास होने के बाद, जब अपने हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको वहाँ बैरियर्स मिलते हैं, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा होता। वो कहते हैं मैडम हम क्या करें, ये तो बात ही नहीं सुन रहा है एमएस और ये वो। हमारे साथ भी ये हो चुका है। लेकिन हमने कैसे रास्ता बनाया है, स्ट्रैटेजीज बनाए कि आपने अपने इंस्टीट्यूट में कैसे ये चीज़ लेके चलनी, कॉपी ना करें। आप मुझसे मेरी पॉलिसी ले लोगे, आरफा से उसके हॉस्पिटल की पॉलिसी ले लोगे, क्या फायदा। वो पॉलिसी आप अपने अस्पताल में नहीं चला सकते। आपको अपनी नॉलेज से अपनी पॉलिसी बनानी है आईपीसी की, एक्शन प्लान उसके ऊपर बनाना है, डाटा कलेक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, उसमें मेहनत पड़ती है। डाटा कलेक्ट करें, एक अच्छा एक्शन प्लान बनाएं। हाँ, एक्शन प्लान बना के आप हमसे वेट करा सकते हैं या अपने किसी सीनियर से कि मैंने ये सही बनाया है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं लोगों से सुनता हूँ तो कहते हैं कि वो हीपा फिल्टर ले लो, सब ठीक हो जाएगा। हीपा फिल्टर कितने का आता है भाई आपका हॉस्पिटल। आप अपने एमएस को बोलेगा हीपा फिल्टर ले लो 4, तो बोलेगा भाई तुम जाओ यहाँ से। सो स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनती है। पहले बेसिक चीज़ें तो ठीक करें। हैंड हाइजीन तो ठीक कर लो भाई, साबुन पानी और हैंड हाइजीन स्क्रब जो भी थिएटर में यूज है उसको देखो। हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन करवाओ, अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो। सो पास होने के बाद वो नॉलेज आपके जैसे, हमने एमबीबीएस तो कर लिया था, लेकिन जब हमें वार्ड में भेजा गया तो नर्सों से पूछते थे यार इसको इंजेक्शन पहले लगाया नहीं, कैसे लगा है। सो ये चीजें होती हैं, होंगी। उस वक्त सीनियर्स होते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। सो दिस इज अ ग्रेट डे कि आप लोग यहाँ से पास होके जा रहे हो। और उस चीज को जारी रखना, बिकॉज लाखों लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। तो आपके पास जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही आप खुश नसीब हो, शायद अल्लाह मियाँ ने आपको चुना है इस काम के लिए। तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाओ। बाकी लोगों ने क्यों नहीं कर लिया, आपने कैसे कर लिया। सो रिमेंबर, अपने उस्ताद को हमेशा उस्ताद समझना और उसकी इज्जत करना, और जो भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कुछ फ़ायदा नहीं किसी भी डिग्री। सो थैंक यू वेरी मच रीमा, आई थिंक आई सेड इनफ। थैंक यू आरफा। Right, thank you so much, Dr. Al-Saf. And आपके साथ सेशन वाकई बहुत inspiring and those words really motivate our candidates as well. So thank you once again. So Dr. Mumtaz ने join कर लिया है, so I would like to invite him. Like while global lessons guide us, every nation has its own challenges. Strengthening IPC in Pakistan, it's not just a necessity, it's a duty. So it's my pleasure to introduce Dr. Mumtaz, a renowned medical professional with 24 years of experience in clinical and public health. As a national focal person for infection prevention and control at the National Institute of Health Islamabad, to share his thoughts on the global perspectives of IPC, I invite our chief guest, Dr. Mumtaz. Thank you, Rima, and thank you, Arfa, for this session. मैं रियली ग्रेटफुल हूँ, लेकिन एक थोड़ी सी मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि डॉक्टर अल्ताफ के होते हुए आपने मुझे चीफ गेस्ट बनाया है, तो अपॉलॉजीज फॉर डॉक्टर अल्ताफ. ही इज माय टीचर or he has always been very kind to support us in guiding us in uh, shaping national policies and guidelines. So I'm honored to be part of this journey with you people. Or before going to congratulate Indus Hospital Health Network, I want to just give some details about the startup IPC. ये सारे pioneers है डॉक्टर अल्ताफ साहब और बाकी जो हमारे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स के मेंबर हैं. हमने ये तकरीबन 2016-17 में टेक्निकल वर्किंग ग्रुप बनाया था, और उसकी तवज्जुह से इनकी गाइडलाइंस के मुताबिक हमने फिर एक
नेशनल गाइडलाइंस बनाई थी, जो कि फर्स्ट नेशनल गाइडलाइंस थी आईपीसी के लिए, और वो कंप्लीट हो गई थी 2019 के तकरीबन एंड में। और ड्यूरिंग कोविड काफ़ी सारी चीज़ें हमें मज़ीद सीखने को मिली और बहुत एडवोकेसी हुई आईपीसी के बारे में। आल दो कि पाकिस्तान में आईपीसी बहुत पुअर है, और ये आप लोगों को पता है कि टाइम टू टाइम आउटब्रेक्स होते रहते हैं। और उसका एक रिसेंट छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो कि एक शर्मिंदगी की बात भी होती है कि एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है और उसकी वजह से कोई 25 से 30 हमारे हेल्थ केयर स्टाफ इन्फेक्ट होता है कांगो का, और उनमें से 3 या 4 डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ की डेथ भी होती है। इस तरह के एपिसोड्स ज़ाहिर आपको याद है बॉलपुर में भी हुए थे, फिर रावलपिंडी में भी हुए हैं, और टाइम टू टाइम होते रहे, कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। और ये तो कांगो की तो डेफिनेटली एक आउटब्रेक होता है जो कि सरफेस पे आ जाता है। लेकिन जो हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस प्रेवेलेंस, चूंकि वी डोंट हैव एनी प्रॉपर सर्वेलेंस इन पाकिस्तान, सो हमें नहीं पता कि चल क्या रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत जो एफर्ट्स होती हैं उनमें से अंदाजा होता है कि दिस इज जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग। So importance of IPC is very much highlighted during last few years। और चूंकि हम ओथ लेते हैं कि वी विल नॉट हार्म और पेशेंट्स, वी जो कि डू नो हार्म के नाम से है। सो अगर हम सोचें तो हम ही हार्म करते हैं अपने पेशेंट को विदाउट हैविंग प्रॉपर आईपीसी। हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हमारे विजिटर्स हैं, दे गॉट इन्फेक्टेड, और फिर उनको कितनी मिजरीज मिलती है, फिजिकल ट्रामा, फाइनेंशियल ट्रामा, साइकोलॉजिकल ट्रामा। एक एक एमडीआरओ को ट्रीट करने के लिए कितने पैसे उनके खर्च होते हैं आउट ऑफ पॉकेट। So means this is just because of us and we are harming our patients। So ये तकरीबन बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है टू एजुकेट हेल्थ केयर स्टाफ विद आईपीसी और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। एनआईएच इज़ वर्किंग फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। और इस वक्त हम जो एनआईएच के बेस पे आपको मैं बताऊं कि क्या कुछ हो रहा है, जिसके तकरीबन ये सारे जो हमारे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप के एक्सपर्ट्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ दैट। नेशनल आईपीसी प्रोग्राम हमने तकरीबन तमाम प्रोविंसेस में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। वी गॉट ग्रांट फ्रॉम ग्लोबल फंड। ऑल्दो कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई ज़्यादा इसके लिए प्रायोरिटी नहीं है, पॉलिटिकल कमिटमेंट भी नहीं है, फिर ये प्रायोरिटी भी नहीं है गवर्नमेंट की। हेल्थ केयर स्टाफ और हेल्थ केयर फैसिलिटी लेवल पे आपको पता है कि इसके लिए कोई डेडिकेटेड बजट भी नहीं है, ना डेडिकेटेड स्टाफ है। ये देखते हुए हमने एक ग्रांट अप्लाई किया था, और फॉर्चुनेटली वी गॉट दैट ग्रांट फ्रॉम ग्लोबल फंड। और इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में 100 हॉस्पिटल्स में हम आईपीसी प्रोग्राम मींस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें उनको कुछ बेसिक सप्लाईज भी देंगे वन टाइम, और बाकी उनकी ट्रेनिंग्स है स्टाफ की। फिर प्रॉपर आईपीसी प्रोग्राम का मतलब ये है कि उनकी कमेटीज बनेगी, उनकी जो टीम्स बनेंगे आईपीसी टीम्स। और फिर हमने साथ साथ इसकी जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है उसके लिए एक एक ऐप डेवलप किया है, जो एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है, और मैनुअल भी, और आईटी बेस्ड भी है। वो इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स यू विल गेट दैट ऐप इन द हॉस्पिटल। और उस पे ये हेल्थ केयर से इन्फेक्शन जो 4 हमारे मेन है उसको हमें प्रायोरिटाइज किया है, और उसको सर्वेलेंस उसकी शुरू हो जाएगी। नेशनल आईपीसी स्ट्रेटेजिक प्लान 2025 से 30 तक हमने बनाया, और ये स्ट्रेटेजिक प्लान जो है बेस्ड है हमारे ग्लोबल एक्शन प्लान पे। रिसेंटली अगर आपने पढ़ा हो तो डब्ल्यूएचओ ने एक लॉन्च किया है, डब्ल्यूएचओ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर मॉनिटरिंग एंड एवॉल्यूशन ऑफ आईपीसी एंड हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस इन द हॉस्पिटल्स। इसके तकरीबन जो वो है ऑब्जेक्टिव्स, वो ये है, पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड नेशनल आईपीसी पॉलिसीज। सो बेस्ड ऑन दिस वी आर डेवलपिंग द पॉलिसीज। वाश एंड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हॉस्पिटल बेस होगा, ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ केयर वर्कफोर्स, इनकी बड़ी ज़रूरत है। और आई कंग्रेचुलेट इंडस हॉस्पिटल फॉर स्टार्टिंग दिस इनिशिएटिव इन 2017। और इस तरह के बाकी भी इंस्टीट्यूशन जैसे हेल्थ सर्विसेज एकेडमी है, फिर पीकेएलआई है, और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे हैं वो ये ट्रेनिंग्स अभी दे रहे हैं, और प्रॉपर सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा प्रोवाइड कर रहे हैं। फंक्शनल फैसिलिटी आईपीसी प्रोग्राम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे हर हेल्थ केयर फैसिलिटीज में एक आईपीसी प्रोग्राम होना चाहिए। फिर सर्वेलेंस एंड डाटा यूज टू ट्रैक एचएआईज एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ट्रेंड्स।
ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इसी ग्लोबल एक्शन प्लान का। प्रिपेयर्डनेस फॉर हेल्थ इमरजेंसी एंड लिंकिंग आईपीसी विद रेजिलियंस एंड आउटब्रेक रिस्पांस। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एनआईएच ने अभी एक तो आईपीसी स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप किया है, जिसपे इस वक्त भी आई एम इन मस्कत, और डब्ल्यूएचओ ने तकरीबन कोई 6-7 कंट्रीज के लोगों को बुलाया था, और वहाँ पे ये प्रोग्रेस हम शो कर रहे थे कि हम अपना आईपीसी प्लान है वो बना रहे थे। तो इन्होंने एक टेम्पलेट भी हमें प्रोवाइड किया है, और ये आज कल ये मीटिंग खत्म हो गई है, सो आज आई एम कमिंग बैक। सो वी आर वर्किंग ऑन आईपीसी एंड एचआईएस सर्वेलेंस राइट नाउ। और फिर एक जो गाइडलाइंस हमारे 2000 में बनी थी या 2019 में, उसको हमने अपडेट किया है, और अभी रिव्यू के लिए वो एमरो डब्ल्यूएचओ को भेजी हुई है। सो शॉर्टली यू विल गेट new updated guidelines including all required जो chapters है based on the COVID exam response। फिर ऑटोमेशन बेस्ड नेशनल एचआई सर्विलेंस टूल डेवलप किया हुआ है, जो कि टेस्ट भी किया गया है, और ये शॉर्टली यू विल गेट दैट ऐप एट ऑल हॉस्पिटल। हमने तकरीबन 105 टर्शरी केयर हॉस्पिटल और सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल पाकिस्तान में असेस किए हैं आईपी कैब के थ्रू। और बड़ी मींस परेशान कुन सूरत हाल है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जो तकरीबन जो हर नो कैपेसिटी और लो कैपेसिटी में हमारे स्कोर्स आए हुए हैं। सो साथ साथ हमने डॉक्टरों की और हेल्थ केयर स्टाफ की ट्रेनिंग्स भी शुरू की है। तकरीबन 200 मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग एज इन प्रोसेस इन डिफरेंट प्रोविंसेस। फिर इसी प्रोजेक्ट में हमारे पास 20 माइक्रोबायोलॉजी लैब्स हम अपग्रेड करेंगे थ्रू आउट पाकिस्तान, और वो भी हमने प्रोविंसेस से नॉमिनेशन उनकी मांगी हुई है। हमारे जो चैलेंजेस है वो ये है कि नेशनल इनिशिएटिव जितनी भी हम लेते हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करती है आपकी पॉलिसीज पे, आपके डेडिकेटेड स्टाफ पे और डेडिकेटेड फंड्स पे, जो कि होती नहीं है। फिर आपके पास ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं है प्रोविंसेस में। दिस बैच विल डेफिनेटली हेल्प अस, और ये इस इनिशिएटिव को आगे लेके जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस प्रोफेशन को एक होली फरीजा समझेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। सो माइक्रोबायोलॉजी कैपेसिटी आपको पता है प्रोविंसेस में, डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत कम है एट पब्लिक सेक्टर लेवल, गवर्नमेंट लेवल पे। तो ये हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वीक मॉनिटरिंग एंड एवाल्युएशन फ्रेमवर्क जो कि हो नहीं रही है। हमारे पास हेल्थ केयर कमीशंस बने हुए हैं, उनकी एक मैंडेट ये भी है कि वो आईपीसी स्टैंडर्ड्स, मिनिमम स्टैंडर्ड्स और इसको इम्प्लीमेंट कर दें, लेकिन अभी काफ़ी ये जो ऑब्जेक्टिव है वो दूर है। स्टिल दे आर वर्किंग, वी आर वर्किंग विद हेल्थ केयर कमीशंस एज वेल। फिर जो पॉलिटिकल और हेल्थ प्रायोरिटीज है वो भी डिफरेंट है। सो वी हैव टू रेज अवेयरनेस एंड एडवोकेसी जो आईपीसी के लिए है। और डेफिनेटली ये जो बैच आपने ट्रेन किया है, इस तरह के बाकी बैचेस और बाकी जो हमारे आईपीसी के हीरोज है, ये हीरोज मैं कहूँगा क्योंकि इन लोगों ने ये ऑप्ट किया है। और जैसे डॉक्टर अल्ताफ साहब ने कहा कि आप लोग इसको परस समझ के करें और इसको प्रोफेशन समझ के कर लें, तो मेरे ख्याल में दिस इज a great support to IPC in the country. सो वर्कफोर्स डेवलपमेंट इसको एक्सपेंड करना, इसको लाजिम करना, मेरे ख्याल में हर एक जो हेल्थ केयर स्टाफ है, चाहे वो नर्स है, डॉक्टर है, हेल्थ केयर वर्कर है, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। सो आई अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव, और वी प्राउडली कमेंट द इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क फॉर लॉन्चिंग 1 year डिप्लोमा इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल, जो कि 2017 में उन्होंने लॉन्च किया था, और इस वक्त इनका मेरे ख्याल में 9th बैच जो है वो अंडर ट्रेनिंग है। सो दिस इनिशिएटिव हैज नॉट ओनली फिल्ड द crucial human resource gap in IPC, but it has also set a national benchmark for excellence in training, patient safety, especially patient safety, healthcare work safety, और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपके एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे है। क्योंकि आईपीसी जो है वो ज़ाहिर है इसको बहुत ऐड करता है इस पार्ट ऑफ आईपीसी। और रिसेंट जो हमारा जॉइंट एक्सटर्नल इवैल्यूएशन हुआ था, इंटरनेशनल टीम आई थी, उसमें आईपीसी की 3 एरियाज को उन्होंने असेस किया था। आईपीसी प्रोग्राम, फिर आपका हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन सर्वेलेंस, और सेफ एनवायरनमेंट इन द हॉस्पिटल। सो आईपीसी प्रोग्राम थोड़ा बहुत हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है, नोटिफिकेशन हो चुकी है हमारे जो आईपीसी टीम्स की और आईपीसी कमेटीज की। तो उस लिहाज से हमारा स्कोर 2 था, 5 स्कोर होते हैं टोटल। तो 2 ये है कि मिनिमम हमारे पास कम से कम प्रोग्राम मौजूद है हॉस्पिटल्स में। लेकिन जो बाकी 2 चीज़ें हैं, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन सर्वेलेंस और सेफ एनवायरनमेंट, इसमें हम जीरो थे, इसमें नो कैपेसिटी थी। सो मेरे ख्याल में आपकी जो ये एफर्ट है इंडस हॉस्पिटल की, इट विल हेल्प अस टू अपग्रेड दो स्कोर्स
फॉर जॉइंट एक्सटर्नल एवाल्युएशन, और ये हर 5 साल बाद होता है। सो इस दफ़ा तो हमारे स्कोर्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन विद दिस ट्रेनिंग, विद सच एक्टिविटीज implementing IPC in the hospital, definitely we will get good scores in future। और हम इंश्योर करेंगे कि पेशेंट्स जो है हमारे हाथों हार्म ना हो, हमारे हाथों उनको नुकसान ना हो। सो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नॉट a negotiable foundation of healthcare delivery। Means इसमें कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, you have to do it। The journey is long, but with collective efforts with all stakeholders, including Indus Hospital, WHO, CDC, and other international partners and public sector hospital, with a clear direction and unwavering commitment, Pakistan can and must lead from the front, inshallah। Thank you so much। Thank you so much, Dr. Mumtaz, for such a powerful words and a lot of information. And now moving further, no academic journey is complete without the guidance and nurturing of the mentors. किताबें सिर्फ लफ्ज़ों का हुजूम नहीं होती, किताबें सिर्फ लफ्ज़ों का हुजूम नहीं होती, ये सोचों की परवाज़ ख्वाबों की ताबीर होती हैं। To share academic insights and reflections, I now invite Dr. Ghina Shamsi, Head of General Surgery and Associate Dean at Indus University of Health Sciences. Dr. Ghina Shamsi played a vital role in championing and supporting this diploma program, and we look forward to her thoughts. Dr. Ghina, it's over to you. Dr. Ghina? I think Dr. Gina का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। आई एम कॉलिंग हर। All right, so I think we can move forward to open feedback from our students or the recent graduates that they are graduating now. So we would like to hear from you, and we actually want the feedback from you all. So कोई भी एक अगर कुछ feedback देना चाहते हैं regarding anything, so they can open their mouth, open their phone, microphone or mic, so I can unmute them. Not the mouth, sorry. All right. So anyone can give some feedback? Yes, I think Dr. Faraz Alam is here. He can give the feedback. Can I unmute you? Or I think we can't hear you. Farhan, can you please unmute Dr. Faraz? डॉक्टर रीमा, Yeah. डॉक्टर गिना इज हियर, उसके बाद हम All right. उनका फीडबैक ले लेते हैं। All right. So, Dr. Gina. I think there are some distortion, Farhan. We can't be able to hear. ठीक है मैम। हाँ, Okay. मैंने आपको जी जी अभी आपके पास राइट से अभी कर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Health Science, I would thank you all for your patience during this technical glitch. First of all, thank you everyone for participating, for making this diploma a success. To all the students, I hope the valuable lessons you have learned will become a beacon. जैसे अभी मुमताज साहब ने कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई है, अब इम्प्लीमेंटेशन करनी है। हमारी ये छोटी सी एफर्ट है इंडस यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंसेज के बिहाफ पे कि हम वो तमाम चीजें जो पाकिस्तानी सिनारियो में तो आई जस्ट होप कि इस कोर्स के बाद आप लोग जहां काम कर रहे हैं वहां पे यू कैन ब्रिंग इट अ पॉजिटिव चेंज, और ये एक तरह से इंडस्ट्री सबका जारिया हो। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर अल्ताफ, मिस रीमा, मिस आरफा,
Farhan, Mr. Mumtaz for their coordination, all the teachers. I think there is internet issue in OT. डॉक्टर गिना जो है ना कनेक्ट नहीं हो पा रही है. Thank you so much for everything and everyone. Over from me. Thank you so much, Dr. Gina, that always encouraging us, and we are having a team and we are having lots of work together. So thanks a lot. And now I think we can take a feedback from our students. So just a little feedback if someone wants to give us. So please, Farhan, you can unmute any one of the students so we can hear from them. All right, anyone wants to give us the feedback, or I just need to move further? All right, so Dr. Faraz wants to give the feedback. Farhan, can you please unmute him? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के दरमियान. आई होप कि मेरी आवाज आ रही होगी. Yes, we are here to. ओके, ग्रेट, listen. वंडरफुल. अच्छा जी, बहुत अच्छा साथ रहा. दैट वाज वंडरफुल. और किसी शायर ने कहा है कि लो जान बेच कर भी जो इल्म हुनर मिले, जिससे मिले, जहाँ से मिले, जिस कदर मिले. तो एक बड़ी ज़बरदस्त जर्नी थी और इसमें बहुत कुछ सीखा भी. और पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जितनी पूरी टीम है और उनके जो एफर्ट्स हैं, और उसमें सबके नाम लेना तो खैर बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यूँ है कि मैं फरहान साहब का तो नाम ज़रूर लूँगा. तो माशाल्लाह फरहान साहब ने जिस तरीके से कोऑर्डिनेट किया सारे स्टूडेंट्स के साथ, और मतलब कोई तकरीबन 200 स्टूडेंट्स, और वो लिटरली किसी भी टाइम पे किसी भी वक्त फरहान साहब को जो है वो बॉदर कर रहे होते थे. और जिस तरीके से फरहान साहब ने उनके इश्यूज, चीज़ों को रिजॉल्व किया, एड्रेस किया, रेस्पॉन्ड किया, दैट इज रियली वंडरफुल. तो सैल्यूट फॉर यू. और जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं सबके लिए, अब चूंकि बहुत सारे हैं तो डॉक्टर रीमा मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, ठीक है? तो एवरीवन, सब ने जो है वो बहुत अच्छा जो है वो कंट्रीब्यूट किया. हम सब ने, मैं समझता हूँ कि बहुत इंजॉय भी किया, बहुत सीखा भी. अच्छा, और थोड़ा सा शायद मेरा फोकस एंजॉयमेंट की तरफ ज़्यादा रहा. तो और वो उसको कोई जिसको यूं कहे कि मतलब किसी डिसरेस्पेक्ट में हरगिज मत लीजिएगा. दैट वाज जस्ट कि हम सब एंजॉय करें और उसमें एक लाइटर नोट जो है वो मौजूद रहे, हम सब एंजॉय करते हुए वो पढ़ रहे हो. तो बहरहाल मेरे लिए तो ये, मैं इसको ऐसे कहूँगा कि एक दोबारा से स्टूडेंट बनने का मौका था, जिसको मैंने भरपूर इंजॉय किया. और अब पता चला कि भाई मेरी तो पोजीशन आ गई है. मैं तो आई वाज शॉक्ड कि ये ऐसा कैसे हो गया. तो बहरहाल, लेकिन आई टोटली एंजॉयड, और इसको एंजॉय भी किया, सीखा भी हमने. तो ओवरऑल मैं समझता हूँ, और बाकी बहुत सारे साथियों के साथ बहुत सारा इंटरेक्शन भी रहा, बहुत अच्छा इंटरेक्शन भी रहा. हमने एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखा, और आई गेस के यही लर्निंग, यही है, इट्स विकेरियस. हम एक दूसरे से देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं. और इट्स नॉट जस्ट अबाउट के जो है वो कोई क्लास है या कोई सेशन है या कोई प्रेजेंटेशन है, इट्स ऑल्सो अबाउट इंटरेक्शन. तो मैं समझता हूँ हमारे इंटरेक्शन भी बड़े अच्छे रहे, पॉजिटिव रहे. जो हमारी, इसको कहा जाए कि दो के बड़ा मुश्किल लग रहा था कि आदमी अपना काम छोड़ के जो है इंडस हॉस्पिटल आए, लेकिन दैट वाज आल्सो वंडरफुल कि हमें इंटरेक्ट करने, बेड साइड काम करने का मौका मिला. तो ओवरऑल मैं यूँ कहूँगा कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम इंडस जो है वो चला रहा है, और बेस्ट विशेस फॉर इट. लेकिन चूंकि अब जहाँ फीडबैक की बात है, तो एक छोटा सा फीडबैक मैं ज़रूर देना चाहूँगा. वो ये कि देखिए, मेरे ख्याल में रिकॉर्डेड सेशन में वो इम्पैक्ट, वो चीज़ नहीं आ पाती जो लाइव सेशंस में आती है. दो के हमारे पास इंटरनेट की वजह से कुछ चीज़ें रहीं, लेकिन मेरा एक जिसको कहा जाए हम्बल सजेशन ये होगा कि आगे जो है वो हम कोशिश ये करें कि शायद लाइव सेशंस रखें, तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो और ज़्यादा जो है मुस्तफ़ीद हो सकेंगे. और थोड़ा सा ये कि शायद थोड़ा सा स्टूडेंट्स को और बोलने का मौका दिया जाए, इंटरेक्ट करने का मौका दिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये और बेहतर हो सकता है. तो लेकिन ओवरऑल दैट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. और मेरे ख्याल में
ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स मैं ये कहूँगा कि अक्सर ने भी इसको बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नई बातें सीखी और बहुत कुछ रिवीजन भी हुआ और बहुत कुछ हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने इस कोर्स से बहुत कुछ सीखा। तो और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने भी मेरी बहुत सारी बातें सुनी और आज आखिरी सेशन है उसके अंदर भी जो है वो मेरी बातें सुन रहे हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि घर में मेरी कोई बात नहीं सुनता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी Thank you, मच। Dr. Farah. Thank you. Right, thank you so much, Dr. Fayaz. So, as usual, definitely हमारी क्लास के वो स्टूडेंट हुआ करते हैं जो we are considering him like बहुत शरारती बच्चा. So, but to be honest, it's very good. और सीखने के लिए it's not about the serious things कि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत seriously और बहुत complicated way में सीखें. So it's a part of learning. It's a part of enjoyment with the team and with along with our students. तो जितना वो मजाक मस्ती में आप सीख रहे हैं उतना आप सीरियस कॉम्पिटिशंस में या सीरियस कॉम्प्लिकेटेड चीजों में नहीं सीखते. तो it's good in some term to become a serious is very good also. All right, so now I think we are moving toward the next things that we are having. So thank you so much for everyone. And now I would like to move further. सफर खत्म नहीं होता, सिर्फ मंजिलें बदलती हैं. सफर खत्म नहीं होता, सिर्फ मंजिलें बदलती हैं और हर मंजिल एक नई राह दिखाती है. And now the most awaited part of today's ceremony, the official announcement of pass out candidates of batch 8. For this, I would like to invite Mr. Farhan Zafar, Deputy Manager of the IC Academics in Indus University of Health Sciences and Indus Hospital and Health Network, to lead us through the celebrations of achievement. So I would like to call Mr. Farhan Zafar to announce the pass out candidates. Now it's over to you. Thank you so much, Dr. Rima, for giving me this opportunity. I would like to, first of all, I would like to thank all faculty members, supporting members who made this diploma program successfully. Alhamdulillah. Now I'm going to announce the top position holders. जैसे कि डॉक्टर फराज ने कह दिया कि पूरे सपोर्ट किया, सारी चीज़ें की, बेहतरीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. और 8वां बैच कंप्लीट हो गया. आई वाज कमिंग इन सेकंड बैच मेरा मार्फा की सपोर्ट के साथ, और 8वां बैच मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. अब अनाउंस करते हैं, हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं. पोजीशन होल्डर को अनाउंस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अनाउंस द पोजीशन होल्डर्स हु अचीव दिस certificate in a higher percentage. First, third position goes to Ms. Zahra. Just a minute. Zaraf Shah, sorry. Ms. Zaraf Shah. Third position goes to Ms. Zaraf Shah. Second position goes to Dr. Faraz Alam. And first position goes to Dr. Maha Anis. They all are great, brilliant student. एंड पार्टिसिपेशन भी इनकी बहुत अच्छी रही है. इन लोगों ने बहुत तंग भी किया है, एक एक चीज़ पूछना करना, और इवन इन्होंने लीड की है, सारे स्टूडेंट को लेके चलना. अगर कुछ मुझसे पूछ रहे हैं तो आगे उनको डिलीवर करना, सपोर्ट किया, बहुत अच्छा रहा. नाउ आई एम गोइंग टू, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, 150 कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस करने हैं और मैं उस पर जाता हूँ. सब स्टूडेंट्स जिन्होंने सक्सेसफुल पास किया है. देयर इज आमिर इकबाल, अंसा कंवल, अब्दुल माजिद बर्दी, अब्दुल कदीर खान, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, आफरा सयाब, एजाज अहमद मक्सी, ऐमन जहरा खान, अजीबुल्ला, अजमल खान, अमीर हमजा, अनीला हसन, आरिफुल्ला, अरीज फातिमा, अशफाक अहमद, आयशा अफजल, आयशा फारूक, आयशा जमील, आयशा शहजादी, बख्त रुखान, दाऊद, अहमद अली, डॉक्टर अहमद इब्राहिम, डॉक्टर अस्मा अदील, डॉक्टर महानूर चौधरी, मसरूर उमर, डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद साद, डॉक्टर मोहम्मद जवाद फारूक, डॉक्टर मोनीम करीम, डॉक्टर तनवीर अली खान, डॉक्टर ज़ैनब तुफैल, इरम हयात, फैसल बूटा, फरीदा शौकत, फरहान अली, फरमान अली,
फरजाना आमिर, फातिमा गुलजार, फातिमा नवाब, फौजिया गनी, गुलाम अली, गुलाम फातिमा, गुल रहमान, गुलालाई, हाफिज मदीहा, हुमायूं सईद, हमाद अहमद, हसनैन खान, हुमेरा बतूल, हुमेरा हमीद, इमरान खान, इनामुल्लाह खान, इनारा आसिफ, इकबाल अहमद, इकरार अली, इशफाक अली, जवाद अहमद, काशिफ नथेल, कफ़ायतुल्लाह, किरण अशरफ, लाल बख्श, मदीहा ज़रफ़ा, माफिया महनाज, मलिक ज़िशान, मरियम असलम, मरियम मुख्तियार, मरियम रफ़ीक, मिसबा नूर, मोहसिन खान, मोहम्मद एहतसाम, मोहम्मद अब्बास खान, मोहम्मद अली मलिक, मोहम्मद अनस जावेद, मोहम्मद आतिफ, मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद हारून, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद यासीन, मुजाहिद अली, मुनज़्ज़ा अनवर, नादिया मुज़फ़्फ़र, नादिया रहमान, नईम शाहिद, नसीबुल्लाह, निसार मोहम्मद, नुसरत परवीन, परवीन बलोच, राफिया, राहिला सफदर, रिजवान खान, रिजवानुल्लाह, रोमी अयाज, रुबीना कौसर, रुखसाना कलीम, सईदुल्लाह, सईदुर रहमान, साइमा अरशद, साइमा नज़ीर, साजिद अली, साजिद हमीद, साजिद अहमद खटक, सलमान खान, समीउल्लाह, सना मोइन, सनाउल्लाह, सनाम नसीर, सारा मैरी, सरवत सुल्ताना, शगुफ्ता हाफिज, शाहरुख खान, शकील अहमद, शम्मा, शराज अली, शुएब अहमद, शुमाइला बीबी, सिदरा हाशिम, सिदरा कंवल, सोनिया सरवर, सुलेमान खान, तैयबा बशीर, टेमर गुल, उबैद अमानत, उल्फत बीबी, उमेर जावेद, उज़ैर अहमद, वक्कारुल्लाह, वक्कास अहमद, ज़ैनब अज़ीज़, जवाद अहमद, ज़ियाउल्लाह, ज़ियाउद्दीन खान, ज़ुबैर अहमद, ज़ुबैरिया एंडलिब, ज़ुबैदा यासिर, जुल्फिया सुल्ताना, ज़ुमर शहज़ादी। ये सब हमारे पास आउट कैंडिडेट थे जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल पास किया और इनके साथ एक बहुत अच्छा टाइम गुजरा पूरे साल का। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं और इनमें से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सिखाया भी, सीखा भी, बहुत अच्छे से रहे, तंग भी किया। सम टाइम हेफिजिट होके मैंने उनको बात सुनाया भी कुछ कि आपको ये चीज़ नहीं पता। अडल्ट लर्निंग थी ये सारी, तो उस पे माशाल्लाह सारे बहुत अच्छे रहे। तो कुछ स्टूडेंट, हमारी कोशिश यही रहेगी, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप कनेक्टेड रहेगा और इंशाल्लाह। डॉक्टर रीमा, नाउ ओवर टू यू। Right. So thank you so much, Mr. Farhan, and congratulations to all our graduates. So as we draw this ceremony to a close, I want to remind our graduates that this diploma is not the end, but the beginning of a lifelong mission, a mission to protect patients, safeguard healthcare workers, and strengthen the healthcare system. As Iqbal inspires us, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं. So to deliver the closing remarks, I now invite Dr. Samreen Sarfaraz, infectious diseases consultant and the IC chair of Indus Hospital and Health Network in the Department of Infection Control. So Dr. Samreen, it's over to you. डॉक्टर रीमा, Yeah. डॉक्टर समरीन ऑन द वे हैं। फिर अगर वंस अगेन एक्टिविटी अट्रैक्टिव रखने के लिए अगर किसी और स्टूडेंट का अगर फीडबैक ले लिया जाए, Feedback. जी, Alright. डॉक्टर फराज साहब, वंडरफुल फीडबैक। किसी और स्टूडेंट का जिन्होंने आपको आपके सेशंस में ज्यादा बोला हो या कोई वॉलंटियरी If बोलना I चाहे remember तो हैंड रेज कर one सकता है। student, Sultana. If Sultana is here, so she can talk something regarding our feedback or about the course.
Sultana is here. There is no any Sultana in the list. All right, so any other student who wants to give some feedback? Dr. Maha Anis can talk something about it. Dr. Maha, are you there? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, we can hear you. Assalamualaikum everyone. Thank you so much for including me in this session. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा ये 1 year डिप्लोमा कोर्स। सब टीचर्स को बड़ा तंग भी किया और इंफॉर्मेशन भी ली और सीखा भी बहुत। इट हैज़ बीन अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। थोड़ा सा डिफरेंट था बिकॉज ऑफ कोर्स हम बेसिकली अपने फ़ोन से बातें कर रहे थे और फ़ोन पे सब कुछ चल रहा था, लैपटॉप्स पे चल रहा था। बट नॉनदलेस अ ग्रेट एक्सपीरियंस, अ ग्रेट टीम कि जिसने हर लम्हे पे, हर स्टेप पे बहुत सपोर्ट किया। और किसी भी टाइम पे फरहान को तो खैर मैंने बहुत ही तंग किया है, फरहान कैन वाउच फॉर दैट। हर क्वेश्चन का, हर क्वेरी का जो है वो आंसर बैक किया है। मुझे स्पेशली जो हमारा लास्ट सेशन था जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग थी वो सबसे अच्छा लगा था बिकॉज सीखने का मौका सबसे ज़्यादा उसमें मिला था हमें टू एक्चुअली पुट आवर इंफॉर्मेशन टू यूज़ कि हमने किस तरह उसको, जो भी हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। तो वो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। दैट्स अबाउट इट। Right, thank you so much, Dr. Maha. I think there are some other people also. अगर हम किसी एक student को ले लें, who wants to give us the feedback? So there are some Aisha Shehzadi or Ghulam Ali. Anyone can give us the feedback. Arifullah or Ali Malik. Is there anyone? कोई भी नहीं है जो बोलना चाहे? आज आप सारे लोग जो हैं वो ग्रेजुएट हो रहे हैं. You guys are graduating today. So I think कोई inspirational, कुछ motivated, something you need to know, something you need to say something about related to your educational journey. You can share some thoughts. I think we are here. Shehbaz Ahmad Khan. Shehbaz, can you say something? Please, Aisha Shehzadi है। all right. So Aisha Shehzadi, you can say. यस, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सबसे वालेकुम पहले तो मैं अस्सलाम. सबका, पूरी टीम का और स्पेशली इनको इस कोर्स को ऑर्गेनाइज करने वाले जो लोग हैं उन सबका स्पेशल थैंक्स करूंगी। अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन को देखती हूँ तो मेरी ग्रेजुएशन जिना हॉस्पिटल से थी। आपको पता है कि एक पब्लिक हॉस्पिटल था और मेरी जॉब भी एक मतलब गवर्नमेंट लेवल के हॉस्पिटल थी तो मतलब वहाँ पे आप अगर इन्फेक्शन कंट्रोल को देखें और अगर आप कोर्स को देखें तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और मुझे इस कोर्स से कितना फ़ायदा हुआ मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। स्पेशली जो हमारी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग थी वो 5 दिन पूरे साल की आपकी स्टडी के ऊपर कहते हैं कि भारी पड़ जाते हैं। मतलब इतना आपको लर्निंग मिलती है, इतनी आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और स्पेशली जब मेरा वाइवा था, लास्ट फाइनल वाइवा था, तो उस वक्त मैं किसी काम से बाहर थी, मेरा बाहर का प्रोसीजर चल रहा था, तो मैं मूफा में अपनी वेरिफिकेशंस करवा रही थी। तो वहाँ पे मैंने खड़े होकर, मतलब जब आपको एक पैशन होता है करने के लिए कि नहीं आपने लर्न करना है और आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, फिर आप नहीं देखते कि आपकी क्या मसरूफियात चल रही हैं या आपके अदर जॉब्स क्या हैं, सारी चीज़ें अपने लेक्चर्स को मैनेज करना, अपनी असाइनमेंट्स को देखना और अपने क्विज, ये बहुत अच्छा मैं कहती हूँ कि एक इनिशिएटिव है हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वालिफिकेशन को, उनकी चीज़ों को, स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और स्पेशली अब मैं सऊदीया में आ गई हूँ, सऊदी जर्मन हॉस्पिटल मदीना में मेरी जॉब है। तो यहाँ पे जब उन्होंने बिक्सल का कोर्स करवाया तो मुझे ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों का नॉलेज था। तो जब मैंने उनको सारी चीज़ों को रिप्लाई किया आगे से उनके सारे क्वेश्चंस का, तो उनको बहुत अच्छा फील हुआ कि मतलब पाकिस्तान से कोई बंदा इतना क्वालिफाइड और स्किल्ड बंदा जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये अपने आप अपने लिए भी प्राउड फील होता है और स्पेशली क्रेडिट सारा किनको जाता है जो इस कोर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं सबको स्पेशली थैंक्स करूँगी, अपने टीचर्स का, अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एक अच्छे पाकिस्तानी होने,
अच्छा हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने की हैसियत से प्रेजेंट कर रही हूँ एक अच्छे JCI एक्रीडिटेड हॉस्पिटल में यहाँ पे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thank you everyone for giving us the feedback. So now we are having Dr. Samreen right now with us. So to deliver the closing remarks, I now invite Dr. Samreen Sarfaraz, the infection diseases consultant and the IC chair of Indus Hospital and Health Network. So Dr. Samreen is over to you. Assalamualaikum. First of all, a big round of applause for all of you for graduating, for passing out with flying colors and for getting your diploma. क्योंकि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. This was the 8th batch of this diploma course, which is a pioneering diploma course in Pakistan because इससे पहले आपके पास infection control का कोई अच्छा structured platform नहीं था. कुछ short courses होते थे इधर कुछ उधर, लेकिन एक organized तरीके से एक diploma करना ये हमने start किया था. और उसके बाद फिर ये आरफा की विजन थी, साथ में उनके फरहान और जो बाकी फैसिलिटेटर्स हैं उनकी बहुत मेहनत है कि जिसकी वजह से ये कोर्स इट हैज़ गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. आपका जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वो जहाँ स्टार्ट हुआ था 8 साल पहले उससे बहुत आगे निकल चुका है. और हमारे पास इसकी सक्सेस के लिए यही काफ़ी है कि हमारे पास एप्लीकेंट्स जो हैं वो हर साल उनमें इजाफा हो रहा होता है. इस साल तो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस था कि हमें लग रहा है कि हमें एक सेकंड बैच शुरू करना पड़ेगा. एक सेकंड वीकेंड कोर्स हम प्लान कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ओवरवेलमिंग रिस्पांस. तो इतनी एप्लीकेशंस थी कि हम नहीं चाहते कि जो एंथुजियास्टिक लोग हैं उनको रिजेक्ट करें खाली इस बुनियाद पे कि जबकि वो मेरिट पे भी उतर रहे हो, खाली इस बुनियाद पे कि जो है हमारे पास वैकेंसी जगह नहीं है. तो वी आर थिंकिंग ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ वीकेंड प्रोग्राम एंड लॉन्चिंग इट प्रेटी सून. तो ये एक अच्छी खबर है. आज के दिन आप लोगों की डिप्लोमा प्रोग्राम में हम इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि very soon you're going to have a weekend course as well for especially for busy professionals जो कि शायद weekdays spare नहीं कर सकते, तो they can also think of enrolling in the weekend course. बहरहाल आज के दिन special thank you and special shout out to all the facilitators for running this course successfully. ये 8th बैच था, ये क्लोज हो गया. इंशाल्लाह अक्टूबर से हम 9th बैच का भी आगाज कर रहे हैं. ये फैकल्टी में स्पेशली आरफा जो कि जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है, फिर मिस शबनम और जो फरहान है जो कि इनकी डे टू डे मैनेजमेंट करते हैं, और वसीम है मुसलसल लगे रहते हैं, आप लोगों के साथ इन टच रहते हैं, आपके फीडबैक्स लेते हैं और सारी असेसमेंट्स और सारा स्केड्यूलिंग एंड एवरीथिंग जो है वो ये करते हैं फरहान. तो बिग शाउट आउट टू फरहान एज वेल फॉर अरेंजिंग दिस सीमलेसली. और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. और मेरी तरफ से तो बस यही है कि ये आई जस्ट प्रे टू गॉड के ये दिस कोर्स मूव्स फर्दर फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, और इंशाल्लाह हम इसको आगे विजन हमारा यही है कि हम इसको मास्टर्स तक भी लेके जाएं इंशाल्लाह. गॉड विलिंग इन फ्यूचर शायद हम कर पाएंगे. ठीक है, थैंक यू. Thank you so much, Dr. Samreen, for those words of inspirations and the good news for our students. So now moving ahead, on behalf of Indus University of Health Sciences and Indus Hospital and Health Network, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed speakers, guests, faculty members, and most importantly, and our graduates for joining us today. So congratulations once again to DHIPC Batch 8. May you continue to shine, lead, and inspire in the novel field of infection prevention and control. So before signing off, so I would like to request everyone कि वो अपने अपने जो cameras हैं वो open कर लें, and then we are having the picture for the last picture for this batch. So I would like to request for everyone to open up their cameras. All right.
सब अपने अपने कैमरा ओपन कर लिए हैं आई थिंक, कुछ के अभी भी नहीं हुए। So I think everyone जिन लोगों ने अपने cameras on नहीं किए हैं तो kindly please open up your cameras so we can take a picture, and it would be pleasure that everyone will do this. Or you can say cheese. ठीक है रीमा। Alright, so I think it's It's done done. now for her picture. Yes, ये Alright, स्क्रीनशॉट हो so गई। moreover, just a last thank you remarks for our manager of infection control department from in this hospital, Ms. Shabnam Bilal, who is the soft-hearted person ever. So I would like to request Ms. Shabnam to say something and to give us the remarks on this diploma ceremony. So please, Ms. Shabnam, it's over to you. Okay. Thank you, Dr. Reema. Thank you very much. And my message is for that day, जो भी हमने सीखा यहाँ से, ठीक है, अभी जिस तरह डॉक्टर गिना शमसी और दूसरे हमारे जितने भी गेस्ट थे, उन्होंने कि आपने पढ़ तो लिया लेकिन उसको जाके इम्प्लीमेंट करना, और जो हमारा इम्पोर्टेंट रोल है डिक्रीज द मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी एंड इन्फेक्शन एज वेल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। डॉक्टर अल्ताफ ने जिस तरह कहा कि हम पढ़ लेते हैं और हम जब यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, और ये अपनी ऑनरशिप समझें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद तो चीज़ें करनी है और दूसरों को भी इस पे स्टिमुलेट करना है, और ये सोचना है कि हम अभी तो जो इन्फेक्शन पेशेंट को लगे हैं वो कोई इस जगह नेक्स्ट में फ्यूचर में हम भी हो सकते हैं। अगर हम यही ऑब्जेक्टिव और एम लेकर इसको चलेंगे तो इम्प्लीमेंट करने में हमें बहुत बहुत इजी होगा, और हमें यही अपना एम यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेके जाना है। वी कैन इम्प्लीमेंट and we can improve our practice and we can save life, decrease mortality, morbidity as well. Thank you, Dr. Rima, and all of students, and congratulations again, all of them. Thank you so much. Thank you so much. Ms. Thank Shabnam. you. I totally agree with this. कि ऐसे जुड़ती है तो जो YouTube ready congratulations with lots of best wishes. रीमा आपकी आवाज चली गई थी, सॉरी। Am I audible now? Yes. All right, so now again, thank you so much, everyone, and congratulations once again. And I wish you can shine like a star in the field of infection control. Thank you so much. अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट डाल देता हूँ मैं यहीं पे कि इंशाल्लाह सून हार्ड में सर्टिफिकेट आप लोग को TCS कर दिए जाएंगे, ठीक है। और अभी एक मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ स्टूडेंट ने तो बहुत अच्छा फीडबैक दिया भी यहाँ पे लाइव प्लेटफॉर्म पे, बट हमारे पोर्टल पे एक लाइव फीडबैक फॉर्म अवेलेबल है। कुछ स्टूडेंट्स ने फिल कर दिया है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप फीडबैक दें ताकि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। जैसे अक्सर डॉक्टर फराज ने फीडबैक दिया है, उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ इंशाल्लाह हम फीडबैक देना यूं लाजमी होता है कि आपने वो फेस किया, आपके आने वाले वो फेस ना करें, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए, ठीक है। तो फीडबैक लाजमी दिया करें, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या तो इम्प्रूवमेंट की तरफ हो, तो फीडबैक लाजमी दिया करें।
ताकि हम उसको और इम्प्रूव करें। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हमने इसको इम्प्रूव ही किया है डिप्लोमा को। तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आप लोग मैं टाइम एक्सटेंड कर देता हूँ फीडबैक का। तो इन बिटवीन 2 to 3 4 डेज के अंदर अंदर आप लोग फीडबैक फिल करें, और इंशाल्लाह मैं फॉर्म शेयर कर दूंगा सब अपने करंट एड्रेस, ऑफिसेज के एड्रेस, जो भी आप देना चाहें, जहां आप रिसीव करना चाहें डिप्लोमा वहाँ रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, मैं TCS कर दूंगा कुछ दिनों में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।